میں یہاں پہ پیرنٹس کو بھی تھوڑا سا ایڈوائس یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنی فیوچر کی انشورنس پالیسی سمجھنا بند کر دیں، کیونکہ اس طرح سے نہ ہم مجموعی طور پہ بحیثیت نیشن، بحیثیت قوم اور بحیثیت کنٹری بھی وی ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک دا کنٹری اینی ویئر، کیونکہ کریٹیوٹی جو ہوتی ہے، کریٹیوٹی فوسٹر کرنے کے لیے آپ کو بچے کو جو ہے وہ انڈیپینڈنس دینی ہوتی ہے، انڈیپینڈنس آف چوائس دینی ہوتی ہے کہ وہ اپنی چوائس اپنے ٹیلنٹ کے مطابق، اپنی کریٹیوٹی کے مطابق یا جو ٹیلنٹ اس کے اندر موجود ہے اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ کرے۔ ریسرچ بنیادی طور پہ جو بڑا دماغ ہوتا ہے، جو بڑا ذہن ہوتا ہے، وہ ایک خاص کلچر کے اندر جو ہے وہ پروڈیوس ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑی سی بھی نظر دوڑا لیں پچھلے 30-40 سال کے اندر تو یو ول فائنڈ کہ سائنس کے اندر سنس ڈاکٹر عبدالسلام کوئی ایک بڑا ذہن جو ہے وہ ہم نے پیدا نہیں کیا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں IMN، میں ہوں شبیر میر۔ ناظرین، پروگرام روبرو میں آج ہم گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کریں گے۔ اسٹوڈنٹس کو کچھ تو مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے اور کچھ ان مشکلات کے حوالے سے بات کریں گے جو اسٹوڈنٹس یونیورسٹیز میں جب چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک کنفیوژن ہوتی ہے کہ کون سا کورس یا کس ڈسپلن میں ایڈمیشن لیا جائے۔ زیادہ تر لوگ جس میں بھی ایڈمیشن ملے اسی کی طرف جاتے ہیں، کوئی ان کی اپنی پریفرنس اس میں نہیں ہوتی ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، پھر اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور پھر یہ دیکھیں گے کہ کیا آپشنز ان کے پاس اویلیبل ہیں، ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں۔ میرے مہمان آج کے اس پروگرام میں زیغم عباس، جانی پہچانی شخصیت ہے، گلگت بلتستان سے ان کا تعلق ہے، درس و تدریس سے منسلک رہے ہیں، گزشتہ تقریباً 10-12 سال سے لاہور کے اندر بیسڈ ہیں، لیکچرر ہیں، اور ان کے پاس گلگت بلتستان سے بہت سارے جو اسٹوڈنٹس جاتے ہیں وہ گائیڈنس لیتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت اپڈیٹڈ ہیں گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کے ایشوز کے حوالے سے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے، کیریئر کونسلنگ بھی ان سے ہم آج لیں گے اس پروگرام میں۔ زیغم صاحب، بہت شکریہ۔ تھینک یو، بہت شکریہ۔ پہلا سوال میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا کہ جو ہمارے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس ہیں سوشل سائنسز سے کتراتے ہیں، کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ بہت شکریہ میر صاحب۔ میں خیال ہے کہ یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو ہے وہ ٹاپک بھی ہے اور ویری ٹائملی ایز ویل، بیکاز چونکہ ایڈمیشنس کا سیزن جو ہے وہ ابھی شروع ہو رہا ہے کچھ 1-2 مہینے کے اندر، اور پھر آبویسلی کوئی 8 سے 10 ہزار اسٹوڈنٹس ایوریج جو ہے وہ گلگت بلتستان یہاں سے جو ہے وہ ڈاؤن کنٹری کی طرف جو ہے وہ بھیج دیتا ہے، جہاں پہ مختلف یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں۔ سو ریگارڈنگ یور کوشچن، اس سے پہلے میں تھوڑا سا ایک چیز بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو ایک اسٹوڈنٹ کے لیے بھی انڈرسٹینڈ کرنا جو ہے وہ ایک بہت امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی وین یو ہیو ٹاکڈ اباؤٹ سوشل سائنسز۔ دیکھیں، یہاں کا جو تعلیمی نظام ہے، اسپیشلی پاکستان اور بر صغیر کے اندر، جو سب کانٹیننٹ کے اندر جو تعلیمی نظام لے کے آیا گیا تھا، وہ ایک خاص پرپس کے لیے جو ہے وہ دیا گیا تھا۔ اور 1835 کے اندر جو انگلش جو ایجوکیشنسٹ تھے، تھامس بیبنگٹن میکالے، انہوں نے برطانوی پارلیمنٹ سے ایک خطاب کیا تھا، اور اس خطاب کے اندر انہوں نے ایک بڑی اہم جو ہے وہ چیز بتائی تھی۔ اور اگر آپ اس کوٹ کو اگر آپ ایک مرتبہ دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے، تو آج آپ کو پاکستان کی جو پوسٹ کلونیل ریفلیکشن ہے وہ آپ کو اس کوٹ کے اندر نظر آتی ہے۔ میکالے نے کہا تھا کہ ہم نے ایک ایسی بریڈ آف کلاس کو جو ہے وہ بنانا ہے سب کانٹیننٹ کے اندر، بر صغیر کے اندر، جو بلڈ اور سکن کلر میں تو جو ہے وہ انڈین ہو، بٹ اپنے ٹیسٹ کے اندر، اپنے مورلز کے اندر، اپنے ایتھکس کے اندر جو ہے وہ انگلش جو ہے وہ نظر آئے۔ اور یہی چیز جو ہے، یہی جو پالیسی ہے ہمارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے اندر پوسٹ پارٹیشن 1947 کے بعد ہمیں ریفلیکشن نظر آتی ہے۔ اور اس ریفلیکشن کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج بھی ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر آپ کو نظر آئے گا کہ ریسرچ سے زیادہ ٹیچنگ کے اوپر فوکس ہے، یعنی کہ ٹیچر کا جو رول ہے، ٹیچر کا جو ایک کردار ہے، وہ آپ کو بڑا ڈومیننٹ اور پریڈومیننٹ اس کی ایک نظر آتی ہے۔ سو ٹیچنگ اور انسٹرکشن یہ جو ہے اس کے اوپر زیادہ پریفرنس دی گئی، ریسرچ کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا گیا۔ اینڈ ناؤ موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس دے آر گوئنگ بیک ٹو دا ڈاؤن کنٹری، اور وہاں پہ جا کے ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں۔ تو وہاں پہ میرا خیال ہے یہ ڈائنامک جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ دنیا جو ہے وہ اس وقت وہ ریسرچ کی طرف جا رہی ہے، اور ریسرچ جو ہے وہ میر صاحب ایک خاص
ख़ास कल्चर के अंदर प्रोड्यूस होता है। रिसर्च बुनियादी तौर पे जो बड़ा दिमाग होता है, जो बड़ा जहन होता है, वो एक ख़ास कल्चर के अंदर जो है वो प्रोड्यूस होता है। आप अगर आप थोड़ी सी भी नज़र दौड़ा लें पिछले 30-40 साल के अंदर, तो यू विल फाइंड के साइंस के अंदर सिंस डॉक्टर अब्दुल सलाम कोई एक बड़ा जहन जो है वो हमने पैदा नहीं किया। उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। उसकी वजह ये है कि जो कल्चर है हमारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो हमारा लर्निंग कल्चर है, वो सवाल पूछने को, तनकीदी सोच को और स्टूडेंट की जो क्रिएटिव एबिलिटीज़ हैं उनको नर्चर नहीं कर पाता, और उसका हतमी नतीजा ये होता है कि हमारा फोकस जो है वो टीचिंग के ऊपर ज़्यादा होता है। नो, I'll just come back to your question के सोशल साइंसेस के ऊपर जो है वो क्यों जो है वो उसको ज़्यादा नहीं की जाती है। देखिए, ये एक ना सिर्फ पाकिस्तान का मसला है बल्कि ग्लोबल जो है वो इशू भी जो है वो बन गया कि सोशल साइंसेस की जो फंडिंग होती है, रिसर्च देखें कहाँ से होती है या इंस्ट्रक्शन कहाँ से होती है, दैट योर यूनिवर्सिटीज़ नीड अ लॉट ऑफ फंड्स। रिसर्च के लिए आपको प्रोजेक्ट्स देने पड़ते हैं, आपको फंडिंग जो है वो करनी पड़ती है। पाकिस्तान के अंदर सिंस 2018 और पिछले उससे पहले भी चंद सालों के अंदर जो सोशल साइंस की फंडिंग थी वो बहुत ज़्यादा कम जो है वो की गई। और सोशल साइंसेस को डिस्करेज करने का एक और बुनियादी रीज़न पाकिस्तान के अंदर और जनरली गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये है कि यहाँ पे जो फैमिलीज़ हैं ना मीर साहब, वो लार्जली दे कम फ्रॉम अ लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड्स, और वो तालीम को जो है वो अपनी एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे लेते हैं कि बच्चा जो है वो कल को पढ़ेगा, आप ही विल गेट एन एम्प्लॉयमेंट। तो पेरेंट्स की और स्टूडेंट्स की एस्पिरेशंस लार्जली जो है वो ये होती है कि वो समझते हैं कि कोई ऐसा करियर ऑप्ट किया जाए जिसमें ग्रेजुएट होने के बाद, जिसमें तालीम मुकम्मल करने के बाद फ़ौरन से जो है वो आपको एम्प्लॉयमेंट मिले। और उसमें ऑब्वियसली इंजीनियरिंग और मेडिकल का जो प्रोफेशन है वो एक बड़ा मेन स्ट्रीम प्रोफेशन है। और फिर चूंकि मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, तो अगर कोई मिलिट्री का जो है वो कैरियर आता है, कमीशन्ड ऑफिसर का जो कैरियर होता है, तो उसमें ऑब्वियसली उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लाइफ जो है वो स्टेबल होती है। सो मोस्ट ऑफ द फैमिलीज, और मैं यहाँ पे जस्ट टू टेक दिस मोमेंट एज एन अपॉर्चुनिटी, मैं यहाँ पे पेरेंट्स को भी थोड़ा सा एडवाइस ये करना चाहूँगा कि देखें, अपने बच्चों को जो है वो अपनी फ्यूचर की इंश्योरेंस पॉलिसी समझना बंद कर दें, क्योंकि इस तरह से ना हम मजमूई तौर पर बहैसियत नेशन, बहैसियत कौम और बहैसियत कंट्री भी वी विल नॉट बी एबल टू टेक द कंट्री एनीवेयर। क्योंकि क्रिएटिविटी जो होती है, क्रिएटिविटी फोस्टर करने के लिए आपको बच्चे को जो है वो इंडिपेंडेंस देनी होती है, इंडिपेंडेंस ऑफ चॉइस देनी होती है कि वो अपनी चॉइस अपने टैलेंट के मुताबिक, अपनी क्रिएटिविटी के मुताबिक, या जो टैलेंट उसके अंदर मौजूद है उसके मुताबिक जो है वो फैसला करे। एक सवाल आता है इससे पहले कि आप आगे बढ़े, मैं ये चूँकि हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, वालिदैन भी देख रहे हैं, मुझे ये बताइए कि अगर इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे ना ले लें तो सारे पेरेंट्स या जो फैमिलीज़ हैं गिलगित बल्तिस्तान की हम बात कर रहे हैं, कोई वेल ऑफ नहीं है, तो वो क्या करें कि कल को बेरोज़गार बच्चा, उसको भी संभालना है, नौकरी नहीं है, तो वो क्या गलत कर रहे हैं अगर वो कोई ऐसा फील्ड चूज़ करने का कह रहे हैं जिसमें फौरी तौर पे कुछ रिटर्न आए? बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उसकी एक वजह है मीर साहब, और ये मैंने बहुत स्टूडेंट्स के साथ अनफॉर्चुनेटली होते हुए देखा है। उसकी एक वजह यह है कि देखें, अगर आपने हतमी आपका जो पर्पस है वो ये है कि आपने बच्चे को जो है वो एज एन इंश्योरेंस पॉलिसी के तौर पे लेना है, या उससे जो है वो उसकी लाइफ को जो है वो आपने स्टेबल करना है, तो आप उसके ऊपर, तालीम के ऊपर इतना ज़्यादा खर्चा करने की बजाय आप एक सीधे काम ये करें कि आप उसको जो है वो किसी बिजनेस के ऊपर लगा दें। जिस पैसे से आपने उसको पढ़ाई करवाई उससे बिजनेस के ऊपर लगा दें, और उसका नतीजा ये होगा कि जो यहाँ पे मार्केट की सूरत हाल है, जॉब मार्केट की सूरत हाल है, उसको मद्देनजर रखते हुए बच्चा जो है वो बिजनेस में बड़ा एक्सेल करेगा। अगर आपने पढ़ाना भी है साथ में, और साथ में आपने उससे ये एक्सपेक्ट भी करना है कि वो उसी तरह से जो है वो आपको रिटर्न करेगा, या हमारी फैमिलीज की जनरली जो है वो ये एक्सपेक्टेशन होती है, तो इट विल नॉट बी पॉसिबल। क्योंकि अभी इस वक्त जो मजमूई सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर, ग्रेजुएट्स जो है वो एक बेतहाशा नंबर के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, मार्केट जो है वो सैचुरेट हो गई है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर में जॉब है ही नहीं, और गिलगित बल्तिस्तान का तो आपको पता है कि यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर जो है वो नॉन एग्जिस्टेंट है। सो माय एडवाइस वुड बी कि आपने अगर बच्चे को जो है वो इस तरह का कोई करना है, तो आप सीधे उसको बिजनेस पे लगाएं, किसी कोई बिजनेस उसको सेटअप करके दे दें, और उसका ऑब्वियसली जो रिटर्न होगा वो बड़ा अच्छा उसको सही जाएगा। चूँकि आजकल एडमिशंस भी हो रहे हैं, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, तो इस पे क्या ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं? हम क्या गाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स को? यूनिवर्सिटीज़ के हमारे यहाँ पे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अब काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, KIU है, फिर बल्तिस्तान यूनिवर्सिटी है, और तो लोग फिर उधर भी जा रहे हैं, शहरों के अंदर जा रहे हैं। अगर हम इन 2-4
प्रोफेशंस को जिनकी हमने बात की, मेडिकल, इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, इनको हटा लें तो क्या ऑप्शन हमारे पास बचते हैं? देखिए, मैं आई वुड सीरियसली अर्नेस्टली रिक्वेस्ट, और चूंकि प्रोग्राम जो है वो इसी उसके ऊपर है, तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो हमारी ज़रूरत है ना, एज ए कंट्री भी और एज ए गिलगित बल्तिस्तान का कोई भी स्टूडेंट है, तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम ऐसे तलबा पैदा करें, ऐसी नस्ल, ऐसी जनरेशन को पैदा करें जो सियासी, समाजी और मुआशी मसलों के ऊपर एक ख़ास नुक्ता नज़र जो है वो रखने के काबिल बने। ये हमारी ज़रूरत है इस वक्त। देखें, हम डेवलपमेंट को लेके, गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को लेके, दूसरी चीज़ों को लेके जितना मर्जी हम वो करें, जब तक हम एक क्रिटिकल मास जो है वो प्रोड्यूस ना करें रिसर्चर्स की, जो इन क्वेश्चंस के ऊपर, जो इन सवालों के ऊपर ये उनकी ये कैपेबिलिटी हो कि वो उन क्वेश्चंस को जो है वो डील कर सकें। और ये चीज़ सिर्फ और सिर्फ मेरा ख्याल है आ सकती है कि सोशल साइंसेस की तरफ जो है वो स्टूडेंट्स का झुकाव ज़्यादा से ज़्यादा हो। देखें, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, साइकोलॉजी है, इकोनॉमिक्स है, ये वो डिसिप्लिन्स हैं जो स्टूडेंट को उसके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसके अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग है, उसको फॉस्टर करने में बड़ा किरदार जो है वो अदा करते हैं। हमारे जितने मसाइल आप गिलगित बल्तिस्तान के अंदर देखें या लार्जली कंट्री के अंदर देखें कि हमने बेसिकली ऐसी लेयर या ऐसी जनरेशन तैयार नहीं की जो कि क्रिटिकली जो है वो सोच सके। और उसका एक हतमी नतीजा ये होता है मीर साहब कि आपके मुल्क के अंदर साइंस की तरक्की भी जो है वो इसी से मुमकिन होती है। अगर आपने एक ऐसी जनरेशन तैयार नहीं की जो तनकीदी सोच की हामिल हो, जो सवाल पूछना सीख सके, जिसको मंतिक के ऊपर, दूसरे चीज़ों के ऊपर या फ़लसफ़े के अंदर इन चीज़ों के, इन डिबेट्स का इल्म जब तक ना हो, तब तक मेरा ख्याल है कि हम जो है वो ना साइंस के अंदर बल्कि दूसरे डिसिप्लिन्स के अंदर और जनरली जो मसले हैं हम उनको टैकल करने की पोजीशन में नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त नीड है ना यहाँ की, इस रीजन की जो नीड है, दैट वी नीड सोशल साइंटिस्ट्स। और उसके लिए मैं ऑब्वियसली स्टूडेंट से बिल्कुल जो है वो ये एडवाइस करूँगा कि दे नीड टू ऑप्ट फॉर सब्जेक्ट्स लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, साइकोलॉजी, जियोग्राफी। ये वो सब्जेक्ट्स हैं जो कि जिनके अंदर बहुत पॉसिबिलिटी होती है कि एक स्टूडेंट जो है वो बड़ा एक्सेल कर सकता है। आईटी के हवाले से आपका क्या ख्याल है? स्टूडेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन गई है और मैनुअल से ऑटोमेशन की तरफ दुनिया जा रही है, तो ऐसे में क्या हम आज के दौर में अपने नौजवानों को ये कह सकते हैं कि आप शिफ्ट करें आईटी की तरफ? लड्डू सी मोहब्बत हो या केक की सी चाहत, जिंदगी की मिठास तो है अपनों के साथ। हम पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों में बसने वालों की शाम की नमकीन चाय हो या फिर हो किसी प्यारे की ट्रीट, नेशनल बेकर्स का हो साथ तो बस सीन ऑन है बॉस। आन से और शान से पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान से, आपकी रिवायात और आपके जज्बात में आपके साथ, आपके अपने नेशनल बेकर्स। देखें, एब्सोल्युटली, लेकिन एक बुनियादी जो मसला है ना, स्पेशली व्हेन इफ़ वी आर टॉकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिलगित बल्तिस्तान, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है बड़ी कंपनीज को सपोर्ट करने के लिए, यहाँ पे इंटरनेट की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने ही है, तो विच विल ऑब्वियसली कुछ अरसे बाद जो है वो इसके अंदर हमें डेवलपमेंट जो है वो नज़र आएगी। बट
एब्सोल्युटली राइट। ये जो आप आईटी इंडस्ट्री जो है वो बता रहे हैं, मैं इसके ऊपर वैसे कोई एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट लुकिंग एट हाउ थिंग्स आर अनफोल्डिंग इज इन फ्रंट ऑफ अस, जिस तरह से ये जो एक तरह से यू नो वी आर ट्रांजिशनिंग टू अ सर्टेन सॉर्ट ऑफ टेक्नो फ्यूडलिज्म। ये बड़ा एक ज़बरदस्त जो है वो एक नई डिबेट जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर छिड़ चुकी है कि हम जो है वो दोबारा से एक टेक्नोलॉजिकल फ्यूडलिज्म की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। तो ऑब्वियसली इसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है, बहुत ज़्यादा जो है वो चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं, और ऑब्वियसली वो तमाम स्टूडेंट्स जो जिनको इन बचपन से इन चीज़ों का शौक होता है, गैजेट्स के साथ खेलने का, दूसरी चीज़ों के साथ वो करने का, तो उनके लिए जो है वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली आईटी का सेक्टर जो है वो इतना डेवलप नहीं है जितना इंडिया के अंदर जो है वो डेवलप है। आप देखें कि इस वक्त दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजिकल कंपनीज हैं उनके हेड्स जो है वो इस वक्त इंडियंस जो है वो बैठे हुए हैं। गूगल का सीईओ सुंदर पिचाई, ही इज़ एन इंडियन। इसी तरह से और भी बहुत सारे जो है वो आईटी के, सो इंडिया हैज़ मेड अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन आईटी। उन्होंने आईआईटीज इस्टेब्लिश किए 2000 से लेके 2010 के दरमियान। जो बेंगलुरु जो उनका शहर है वो एक बहुत बड़ा आईटी का हब जो है वो तस्वुर किया जाता है। सिलिकॉन वैली जो है वो इंडिया में जो है वो आ चुका है। तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ अभी तक हमारे सामने उस तरह से सामने तो नहीं आई, लेकिन ऑब्वियसली जितना हम इन्वेस्टमेंट करेंगे इस सेक्टर के ऊपर उसमें अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो हमें नजर आए। थोड़ा सा प्रोग्राम का वक्त भी महदूद है, लेकिन मैं वापस आना चाहता हूँ सोशल साइंसेस की तरफ, जो हमने बात स्टार्ट की थी। अगर सोशल साइंसेस की तरफ हम अपने नौजवानों को, बच्चों को डालें, तो क्या उसमें इनकम की भी इतने ही मौके हैं जितने कि हम दूसरे जो डॉक्टर्स और प्रोफेशनल उस फील्ड में देखते हैं, इसमें भी हैं? बिल्कुल है। मतलब अगर कोई बंदा, कोई स्टूडेंट जो है वो सोशल साइंसेस के अंदर एक उसके अंदर एक्सेल करता है, उसको जो है वो अच्छे तरीके से उसके ऊपर जो है वो हासिल कर लेता है, और ये बहुत ज़रूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो हायर एजुकेशन लर्निंग कल्चर है वो स्टूडेंट्स को जो है वो स्किल उतना ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि एक बच्चा जो है वो 12 साल तक अंग्रेज़ी की तालीम हासिल कर लेता है, और द डे ही इंटर्स इनटू यूनिवर्सिटी, अगर आप उससे कहें कि आप अंग्रेजी में जो है वो एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट लिख के दे दें, तो ही विल नॉट बी एबल टू डू इट। सो ये एक हमारे हायर लर्निंग का जो है वो हायर एजुकेशन कल्चर का एक अलमिया तो ज़रूर है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टूडेंट जो इन सब्जेक्ट्स को ऑप्ट कर लेता है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, दूसरे सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स हैं, इनके अंदर अगर उसकी गिरफ्त हो उस सब्जेक्ट के नुआंसेस के ऊपर, सब्जेक्ट को जो है वो अंडरस्टैंड करे, तो मेरा ख्याल है सोशल साइंसेस से बेहतर करियर कोई नहीं हो सकता। और मैं सबसे जो ज़ाती तौर पे मुझे भी लगता है कि एक जो रिवार्डिंग करियर होता है वो टीचिंग का एक करियर होता है। हायर एजुकेशन टीचिंग का जो है वो एक करियर होता है, उसमें आप अप टू डेट रहते हैं नॉलेज के साथ, आप चीज़ों के साथ जो है वो आपकी एक जुड़त बनती है, आप डिबेट्स जो दुनिया भर में जो है वो चल रही होती हैं उनके साथ आप जो है वो इन टच रहते हैं। तो हमारे लिए, मतलब स्टूडेंट्स के लिए जो यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में, सोशल साइंसेस वो राह जो है वो उनके लिए ओपन कर देती है, वो रास्ता उनके लिए खोल देती है जहाँ पे वो इन चीज़ों के अंदर अपने आप को स्ट्रीमलाइन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन जितना करना है अच्छे तरीके से करना है, एक्सेल करना है, एक्सेल करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, हमने बेसिकली फिर वही बात आ जाती है कि रिसर्च को हमने बड़ा डिस्करेज किया है, तनकीदी सोच को जो है वो हम डिस्करेज करते हैं अपने हायर एजुकेशन के अंदर। तो सोशल साइंसेस बुनियादी तौर पे खड़ी ही इस डिक्टम के ऊपर है कि भाई यहाँ पे जितनी ज़्यादा रिसर्च होगी उतना ज़्यादा बच्चे को भी, स्टूडेंट को भी जो है वो उतना ज़्यादा उसका जो है वो बेनिफिट होगा। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर टीचिंग और इंस्ट्रक्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस है और रिसर्च के ऊपर जो है वो फोकस कम हो गया, जिसका नतीजा ये है कि स्टूडेंट जो है वो एक तरह से उस सब्जेक्ट के ऊपर गिरफ्त करने की पोजीशन में नहीं आता। बहुत शुक्रिया जगम साहब, आप हमारा प्रोग्राम आए, नाज़रीन प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।